नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। इस बुलेटिन में बात होगी सबसे पहले संसद में मचे संग्राम की। कल आप देख ही रहे हैं कि राज्यसभा में हंगामे पर बड़ी बैठक और अमित शाह और राज्यसभा के सभापति की बैठक हो रही है। पीयूष गोयल शामिल हैं, प्रहलाद जोशी भी इस बैठक का हिस्सा हैं। हंगामा करने वाले सांसदों पर कोई एक्शन हो सकता है। कल आपने देखा था राज्यसभा की तस्वीर न्यूज 24 ने आपको दिखाई थी कि लगातार हंगामा किया जा रहा है सांसदों की तरफ से। अब ये एक बैठक सभापति वेंकैया नायडू के साथ चल रही है। इसमें माना जा रहा है कि जिन सांसदों ने माहौल खराब किया है, बार बार कहने के बाद भी वो नहीं माने, उन पर एक्शन हो सकता है। कल राज्यसभा में हंगामे पर आज बड़ी बैठक। More hydro electricity power generation project. We could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it, withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. Different kinds are admitted by chair. The language were used by the list of business is drafted in such a way that it is acceptable to all sections of the House without denting the thrust of the issue to be discussed. It happened yesterday too, and the chair has been doing it for a year. I find it difficult to understand as to why the subject was listed in the list of business for yesterday would have prevented any member to raise any issue concerning the farm sector, including 3 farm bills that some members were keen to raise in the House and even demanding their withdrawal. Yesterday was a golden opportunity for the concerned members to have gone on record with their positions on all issues relating to the. तो हंगामा करें। Please have the decency at least, that the chair is saying something, at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. The positions on all issues to the right of farmers, but it was not to be, as the sole intention seems to be, not to allow the House to function. Sir, 35 bills have been passed. Right at the start of the proceedings of the House yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. And then, what is worrisome, some members of the House have caught the sad moments of sacrilege in the House yesterday and posted it on the social media. By doing so, they only ended up showing the people to the extent which this August House can degenerate to the newfound competitiveness and aggressive disruption by some sectors. I was very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the House, I am sacred to visualize implications and consequences of such competitive acts of sacrilege in our temples of democracy. I earnestly appeal to the collective conscience of this House to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies, if any failure to do would certainly amount to a setback to our parliamentary democracy, and to make it irrelevant. I would like to remind all of you that we begin to celebrate 75 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst disruptor, the choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the House like this. I am adjourning the House to meet at 12 a.m. दिया गया है। नाराजगी जताते हुए सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि कल जो हुआ वो बहुत बुरा था। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ था, सदन के खिलाफ था, संसद के खिलाफ था, मर्यादा के खिलाफ था। और साथ में उन्होंने कहा कि आसन पर फाइल फेंकना बेहद शर्मनाक है। ये विपक्षी सांसदों की करतूत पर बड़ी नाराजगी अपनी व्यक्त करते हुए वेंकैया नायडू ने एडजॉर्न कर दिया है, राज्यसभा को स्थगित कर दिया है। हंगामे का जिक्र कर भावुक हुए हैं वेंकैया नायडू सभापति। कह रहे थे मैंने बार बार रोका, लेकिन यहां पर आसन की मर्यादा को ही तार कर दिया गया विपक्षी सांसदों की तरफ से। और प्रशांत देव जुड़ गए हमारे साथ। प्रशांत, आज सभापति वेंकैया नायडू सख्त भी थे और वो काफी वहां पर भावुक भी नजर आए। देखिए, जिस तरीके से संसद परिसर में हंगामा हुआ कल, मेज पे चढ़ गए, कुछ सांसद सिर्फ फाइल फेंक दी, फाइल आसन पे जब फेंक दी
उसके बाद तुरंत उसी वक्त एडजर्न कर दिया गया सभा को, राज्यसभा को एडजर्न करना पड़ा। और ये दूसरी घटना है जब इस तरह के हंगामा परिसर में हुआ। इसके पहले जब हुआ था तो एक महिला अधिकारी को चोट भी आई थी, उस पर सरकार की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई थी, आलोचना की गई थी। लेकिन कल की घटना के बाद से ऐसा लगता है कि इस बार कार्रवाई जो है करने के मूड में है सरकार। तो इस पर आज बड़ी अहम एक मीटिंग भी हुई है, जिसमें कि अमित शाह मीटिंग में थे और दूसरे केंद्रीय मंत्री मीटिंग में शामिल थे। और हो सकता है कि आज ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो पूरा सत्र जो है, मानसून सत्र जो है, पूरा गतिरोध में रहा, हंगामे में रहा। और कल जो है विपक्ष जिस बात पे चर्चा की मांग कर रहा था, किसान के मुद्दे पे, जब उस पर समय दिया गया तो उस पर चर्चा न करके जिस तरह का हंगामा हुआ, मेज पे चढ़ गए, कुर्सी और फाइलें फेंकी गई, तो इस पर काफी आहत हुए। और उसके बाद उसको एडजर्न कर दिया गया। और अब जो जानकारी मिल रही है कि ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन प्रशांत, ये चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आसन पर जाना मतलब आप सीधे सीधे सभापति की इंसल्ट कर रहे हैं, बात ना मानकर। फिर आप चलाइए संसद अपने हिसाब से, सभापति की जरूरत ही कहाँ है फिर वहां? देखिए, जब मानसून सत्र के शुरू होने के एक दिन पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने साफ साफ ये बात कही थी कि सभी सदस्यों की बात को सुना जाएगा, सबकी बात को स्वस्थ मर्यादा में रख करके जो बात कहे जाएंगे सबका मान रखा जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी। यानी कि सरकार को पहले से इस बात का आभास था कि हंगामा पूरी तरीके से होगा। इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री ने तमाम सांसदों को आश्वासन दिया था कि उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से जब से मानसून सत्र शुरू हुआ, पूरा कोई भी काम ठीक से उसमें नहीं हुआ, पूरा हंगामा रहा। काफी उसकी आलोचना भी हुई। सरकार बार बार कहती रही कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जो सरकार नहीं प्रशांत, हुआ ना अपने फायदे के लिए हुआ। कल लोकसभा से आपने देखा नहीं कि ओबीसी जो संशोधन बिल है वो पास हो गया, फायदे के लिए हुआ। जहाँ पर पार्टियों को अपना फायदा नजर आता है वहां पर एकजुट हो जाती है, बाकी जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर टाइम वेस्ट, बर्बाद कर रहे हैं सब कुछ। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार हंगामा होता रहा। लेकिन जहां पे जब बात आ गई ओबीसी बिल के, तो ओबीसी बिल पे कोई हंगामा नहीं हुआ, सबने उसका समर्थन किया और संसद में लोकसभा से उसको पास करा दिया गया। क्योंकि सब ये जानते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां भी ये जानती हैं कि इस मुद्दे पे हंगामा करना उनके हित में नहीं है, इसलिए उस पर कोई शोर शराबा नहीं हुआ। बाकी किसान के मुद्दे पे, पेगासस के मामले पे लगातार संसद में गतिरोध बना रहा, हंगामा होता रहा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि संसद में अपने अपने मुद्दे पे और अपने अपने सुविधा के अनुसार हंगामा और शांति हुई। और पूरा प्रशांत, लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। जी, ये आज ये खबर आ रही थी, अभी ये अगर पुख्ता हो गई है तो लोकसभा को सैनिटाइज कर दिया गया है। तो ये खबर अभी आई है कि लोकसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रशांत, एक मिनट रोक रही हूँ। जो राज्यसभा में हुआ, एक बार फिर से देश की जनता तो देखे कि उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं संसद में। Very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the House, I am sacred to visualize implications and consequences of such competitive acts or sacrilege in our temples of democracy. I earnestly appeal to the collective conscience of this House to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies. If any failure to do would certainly amount to a setback to our parliamentary democracy, to make it irrelevant. I would like to remind all of you that we begin to celebrate 75 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst disruptor. The choice is yours. And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the House like this. I am adjourning the House to meet at 12 a.m. It's sad. I am deeply anguished. तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को आप सुन रहे थे। उन्होंने कल जो हुआ है सांसदों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कि आसन पर फाइलें फेंकी गई, कागज फेंके गए, मर्यादा को तार किया है, उस पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है, भावुक भी दिखाई दिए, दुख भी उन्होंने अपना व्यक्त किया है। और इधर आप देख रहे हैं कि तय समय से 2 दिन पहले लोकसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है और आज दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। प्रशांत देव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
प्रशांत, ये संभलना होगा जब जिसकी सरकार वैसा ही बिहेव संसद में करते हैं ये लोग, और फिर एक दूसरे से उम्मीद की जाती है कि अब आप हमारी बात सुने। दोनों को निभानी होगी अपनी भूमिका और इस मर्यादा को बना के रखना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है ये। जी बिल्कुल, दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरी तरीके से सत्र में मर्यादा भंग होते हुए आपको दिखाई दी, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और आज की स्थिति बताएं तो आज सरकार के पक्ष से भी एक मीटिंग हुई है और विपक्षी दलों के तमाम नेता भी आपस में मीटिंग कर रहे हैं अगली रणनीति के लिए कि उनको किस तरीके से एक्ट करना है। आज चूंकि 12 बजे तक राज्यसभा स्थगित कर दी गई है और वहाँ एक बिल अभी पास होना है, वहाँ पे पेश होगा। और वेंकैया नायडू ने साफ तौर पर कह दिया है कि संसद की मर्यादा क्या है ये ना भूले विपक्ष, और साथ ही कहा कि ये सरकार को मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात इसी आशय से कही है कि जिस दुर्भावनापूर्ण व्यवहार राज्यसभा में हुआ, और एक बार नहीं 2 बार जब संसद परिसर में इस तरह घटना हुई तो उससे आहत होकर के उन्होंने यह बात कही। और सरकार की तरफ से बात अगर कही जाए तो सरकार ने बार बार ये बात कही, तमाम सरकार के बड़े मंत्रियों ने कहा कि हर विषय पे वो चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जो है इससे भाग रहा। तो उलट इसके विपक्ष 2 बांगों पे अड़ा रहा कि किसान के मुद्दे पे चर्चा कीजिए, पेगासस के मुद्दे पर चर्चा कीजिए और इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। लेकिन तो ये इसी बात को लेकर के लगातार पूरे सत्र में गतिरोध बना रहा, और गतिरोध और हंगामा जो आमतौर पे होता है उससे बढ़कर इस बार बात हो गई। और मतलब एक महिला सुरक्षा अधिकारी को चोट लग गई और इस तरीके से सब नहीं होना चाहिए था। वाकई में जब देश की जनता देख रही होगी तो उनको भी शर्म आ रही होगी कि उनके नुमाइंदे संसद में जाकर कर क्या रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत देव आपका। एक छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।